Good morning, students. We are doing exercise 12.3 and we are on the question number 9. Today we will discuss question number 9. Read statement carefully from your book. AB and CD are two diameters of a circle. AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other. And OD is the diameter of the smaller circle. If OA is 7 centimeter, find the area of shaded region. What is given to us? AB and CD are two diameters and they are perpendicular to each other. Perpendicular है, एंगल कितना होगा इनके बीच में 90 डिग्री. OD diameter किसका है? Smaller circle का. And what we have to find? Area of shaded region. Then how we will find area of shaded region? OA is 7 centimeter. Radius of bigger circle is 7 centimeter. It means OD is also 7 centimeter. OD 7 है तो ये क्या है? Smaller circle का diameter है. अगर diameter 7 centimeter है तो radius कितना आ जाएगा? 7/2 centimeter. इसे इस सर्कल का एरिया फाइंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास रेडियस आ गई. फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. फॉर्मूले में पुट करेंगे, लगाएंगे. अब ये है कि ये वाला रीजन हम कैसे फाइंड करें. हमें सेमी सर्कल दिख रहा है, ए बी सी एक सेमी सर्कल दिख रहा है बेटा. अगर मैं इस सेमी सर्कल में से एक ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, पूरे सेमी सर्कल में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा. ठीक है. और ये परपेंडिकुलर गिवन है 90 डिग्री. एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर. और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा क्या हो जाएगा? माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पे बिकॉज हमें ये हाइट गिवन है, डायमीटर्स परपेंडिकुलर गिवन है, तो ये क्या गिवन है? हमें हाइट गिवन है. ये हाइट हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा. अब हाइट और बेस कैसे निकालेंगे? हमें ये 7 सेंटीमीटर गिवन है AO, तो OB भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा. यानी कि बेस कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर. और ये भी तो रेडियस है OC भी तो ये कितना है? 7 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस 14, हाइट 7 सेंटीमीटर. Now we have to find the area of this circle and this shaded region. Diameter of the circle with the diameter OD is 7 centimeter. Then what will be radius? 7/2 centimeter. Now we have to find area of this circle with the diameter OD, smaller circle you can say. Area of circle is pi r square. Put the values here. Pi is 22/7. Radius for this circle is 7/2 into 7/2. 7 to 7 cancel out. 2 to 22 cancel out, getting 11. And area of this smaller circle will be 77/2 centimeter square. Now we have to find the area of this semicircle. What is the radius of this semicircle? This is radius and it is 7 centimeter. OA is 7 centimeter. It is given to us. Area of semicircle will be half pi r square. Put the values here. Half into pi into r 7 into 7. After solving it, we get area of semicircle is 77 centimeter square. Now we have to find area of this triangle ABC. Before that, we have to find the base of AB. Base of triangle, that is AB. AB क्या होगा? OA plus OB. It means 7 plus 7. AB is 14 centimeter and OC is radius of circle. It means it is 7 centimeter. Put the values here also. Half into base into height. Base हमारा क्या है? 14 है. Height क्या है? 7 है. Cancel out. Then we get area of triangle is 49 centimeter square. अब हमने ये तीनों एरिया निकाल लिए हैं, स्मॉलर सर्कल का, सेमी सर्कल का और ट्राइंगल का. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया एरिया ऑफ दिस सर्कल
प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। इक्वेशन बनाई हमने, एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर OD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। पुट ऑल द वैल्यूज हियर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, smaller circle is 77/2, semicircle 77 minus area of triangle is 49. Solve it, we get 38.5, subtract 49 from 77, we get 28 here, and final answer is 66.5. This is area of shaded region. Now question number 10, read from your books. The area of an equilateral triangle ABC. हमें क्या गिवन है बेटा? एक ट्राइंगल गिवन है ABC। कैसे ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक तो बेटा इन क्वेश्चंस में जो कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स हैं, जो भी हमारे पास प्लेन फिगर्स आती है, आपको उन सब की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चंस में इनकी प्लेन फिगर्स की प्रॉपर्टीज नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। वैसे तो इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन प्लेन फिगर्स की, जैसे अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई तो आपको पता होना चाहिए ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल कितना होगा इनमें? 60 डिग्री। इन सभी का एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। The area of an equilateral triangle ABC, ये जो हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया हमें गिवन है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of the triangle as center a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle। बेटा हमें हर वर्टेक्स से एक सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है? हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। जो ये साइड है AC, इसका हाफ का एक सर्कल यहाँ ड्रॉ करना है। हर तीन वर्टेक्स है हमारे पास, तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल ड्रॉ होगा। फिर ऐसे A से हाफ से ड्रॉ करना है, ऐसे ही पॉइंट B से सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। 3 सर्कल्स ड्रॉ हो गए हमारे। अब हमें क्या निकालना है? शेडेड रीजन, ये बीच वाला रीजन। आपको देखते ही पता चल रहा होगा ये शेडेड रीजन हम कैसे फाइंड करेंगे। ये जो पूरी ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से मैं अगर इन तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी इसमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ऑल दीज 3 सेक्टर्स। अब बात यह है कि इन तीनों सेक्टर का एरिया सेम होगा या अलग अलग होगा। अब तीनों में एंगल देखो क्या है? 60 डिग्री है। साइड्स इक्वल है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो हाफ भी इक्वल होंगे। सपोज अगर ये 6 है तो इनका हाफ क्या हो जाएगा? 3 इधर और 3 इधर हो जाएगा। यानी कि रेडियस भी सेम है, थीटा भी सेम है, तीनों सेक्टर्स का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करके। अब हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? इसमें सिर्फ हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन है सिर्फ। क्या है? 17320.9 गिवन है शायद। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? √3/4 A² होता है। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, √3/4 A²। A हमारी है साइड, ठीक है, साइड ऑफ एन ट्राइंगल। A ले लेते हैं इसको, और अब वैल्यूज पुट करके हम ये A² की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। A² इज इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने सपोज कर ली A सेंटीमीटर। हम यहाँ A² फाइंड करेंगे। ये बेटा 0.5 नहीं, 0.9 नहीं, 0.5 गिवन है। तो वैल्यूज पुट करें, इसको 4 को ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, √3 डिनोमिनेटर में आएगा। अब स्टूडेंट्स हमें √3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है? एज इट इज यूज करेंगे 1.73205। अब देख रहे हो कि ये सेम है, नंबर डिजिट सेम है बिल्कुल।
सिर्फ डेसिमल का फर्क है। अगर हम इनके डेसिमल हटाएं, यहाँ कितने डिजिट है डेसिमल के बाद? 5। ये डेसिमल हटा देते हैं तो कितनी जीरो जाएंगी? 5। ठीक है। और यहाँ कितने डिजिट है डेसिमल के बाद? 1, तो यहाँ क्या जाएगा? 10। अब ये तो सीधा इससे कट जाएगा 1 पे, एक जीरो और कैंसिल हो जाएगी। कितनी जीरो बच गई? 4। तो ये आ गया आपके पास 40,000। ये क्या है? ए स्क्वायर। फिर से इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 200 इंटू 200, या फिर आप ये कर सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट 2 और 4 जीरोस की जगह क्या लेंगी? 2 जीरोस। सो हमारे पास एक साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी आ गई? 200 सेंटीमीटर। हमें देखो बेटा, दोबारा रिवाइज करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया यहाँ गिवन था, हमें क्या निकालनी थी? साइड, क्योंकि जो हमें ये रेडियस चाहिए इसके लिए तो हमें साइड जरूर चाहिए। तो ये साइड निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले में पुट किया इसको √3/4a² में, और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये जो a है BC, ये 200 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा इसका। रेडियस ऑफ दिस ईच सर्कल विल बी 200/2, 100 सेंटीमीटर। नाउ हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ये क्या होएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ these 3 सेक्टर्स। ठीक है, पुट करेंगे यहाँ वैल्यूज। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें गिवन है, ये तो हमें फाइंड करना ही नहीं। गिवन है हमें 17320.5। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। 3 इंटू θ/360 πr²। थीटा की वैल्यू क्या है? 60/360। पाई की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 3.14, और रेडियस कितना फाइंड किया हमने? 100 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15,700। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट के बाद हमें क्या मिलेगा आंसर? 61,620.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ऑन अ स्क्वायर हैंकरचीफ ABCD, हमें क्या गिवन है? स्क्वायर हैंकरचीफ, 9 सर्कुलर डिजाइन्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। देखो बेटा, हमें क्या गिवन है? 9 सर्कल गिवन है। ये सबकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। मेरे से इक्वल नहीं बनेंगे, इक्वल गिवन है। रेडियस कितनी है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड करना है हमें? जो ये रिमेनिंग पोर्शन है इन सर्कल्स के बीच में, ये हमें फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने का एक ही तरीका है बेटा कि हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें, फिर उस एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन 9 सर्कल्स का एरिया माइनस कर दें, तो हमारे पास जो ये पैसे ऐसे पार्ट बच गए हैं इनका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? अब एरिया ऑफ सर्कल तो हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr², इजिली फाइंड हो जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए? साइड। AB या CD में से कोई भी साइड चाहिए। साइड कैसे फाइंड करेंगे? देखो बेटा, अगर हम साइड AB निकालें तो ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो एक सर्कल का डायमीटर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। और कितने सर्कल हैं? तो इन तीनों का डायमीटर कितना हो जाएगा? 14 कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर। ये AB क्या है? इन तीनों डायमीटर्स के इक्वल तो है। AB क्या है? 3 इंटू डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? साइड क्या आ जाएगी? 42 सेंटीमीटर। तो बेटा साइड ऑफ स्क्वायर ABCD क्या हो जाएगा? 3 इंटू डायमीटर ऑफ सर्कुलर डिजाइन, 3 इंटू 14। ये डायमीटर हमने निकाला था 14 होगा। रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, डायमीटर क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो साइड होगी हमारे पास स्क्वायर की 42 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड।
that is 42 into 42. We will get 1764 centimeter square. एरिया ऑफ वन सर्कल निकाल ले, 9 का तो उससे 9 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा. एरिया ऑफ वन सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. रेडियस की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 7 सेंटीमीटर. पुट ऑल द वैल्यूज हियर. पाई 22/7 into 7 into 7. We get area of one circle is 154. Now we have to calculate the area of 9 circles. Multiply by 9. We get here 1386 centimeter square. So area of the remaining portion will be area of square minus area of 9 circles. अगर इस स्क्वायर में से हमें 9 सर्कल्स का एरिया माइनस कर देंगे तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारे पास इनका एरिया आ जाएगा. एरिया ऑफ 9 सर्कल्स हमने ये फाइंड किया, एरिया ऑफ स्क्वायर ये है. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी 378 centimeter square. Okay, student, you have to complete these questions in your notebook also.